मान लो कि ब्रेकअप हो भी गया, सो आफ्टर यू गाइस हैव ब्रोकन अप, ना तू खराब है ना वो खराब है, बिकॉज both of you guys are the same people who are madly in love with each other, right? Then सडनली ऐसा क्या हो गया भाई कि देखो सबसे खराब इंसान लगने लगी दुनिया में। एनडीए में भी फर्स्ट अटेम्प्ट आई कुड नॉट क्लियर बिकॉज आई वाज टू ओवर कॉन्फिडेंट। आई वाज लाइक कि ठीक है ये तो निकल जाता है, बस एक छोटा सा पेपर ही तो है और ये वो, एंड आई फेल्ड मिजरेबली। सबके दिन में 24 घंटे ही होते हैं। इट इज ओनली अबाउट हाउ यू डिस्ट्रीब्यूट दोज 24 आवर्स, एंड आप उन 24 घंटों में क्या कर रहे हो। आई एम अ फुल टाइम कॉलेज स्टूडेंट। मैं दिन में कॉलेज जाता हूँ, and then I do a full-time job along with that, which is online. ओके। So along with that, I create content, and then I take care of myself and the people around me. Look into the mirror and talk to yourself. People don't talk to themselves, and that is why they don't know what's going on the inside. You have to be extremely sure of what's going inside. तभी आपकी आवाज जब आपके मुंह से निकलेगी तो उसमें जिगरा, उसमें दम फील होगा सामने वाले को। क्विक अनाउंसमेंट, इफ़ यू आर समवन जो अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव करना चाहता है एंड ही वांट्स टू बिकम अ बेटर स्पीकर, दे कैन चेक आउट इंग्लिश कम्युनिकेशन कोहॉर्ट बाय अनइंटरप्टेड। इस कोहॉर्ट में ऑल लर्नर्स आर टॉट अंडर द गाइडेंस ऑफ अ प्रोफेशनल कम्युनिकेशन ट्रेनर over a span of 2 months and in small groups of 10 students. All study material is provided as well. You can check out all the details regarding the program on their website. The link is in description. Do check it out. On to the video. जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। स्वागत है आपको ऑन द फौजी शो। टुडे वी हैव विद अस वेरी स्पेशल गेस्ट ईशान मुदगिल। ईशान, thank you so much bhai for accepting our invitation. It's an honor and a privilege to host you. He's very famous on Instagram. बहुत एस्थेटिक रील्स बनाता है ये लड़का, और एनडीए 147 रिकमेंडेड है। ही इज एन एथलीट, पीछे देख रहे हो, मैराथन्स और अल्ट्रा मैराथन्स भागता है। He's physically very very fit, unlike your host. And ईशान, thank you so much. इतने सारे कमेंट सेक्शन में आता है कि ईशान को बुलाओ, ईशान को बुलाओ, and you were gracious enough to accept our invitation. For those who don't know, he got recommended in NDA 147th course. SSB के मेडिकल्स में रह गया, लेकिन turned around, बीटेक कर रहा है प्रेजेंटली, and he is an superb athlete or fitter than most of my course also. So he's very fit, and we will talk about that, about his journey, ki how he bounced back, and now he is aspiring for a, I think, good career, I would say, because We'll talk about it. he is keeping his options open, Yeah. and we will talk about it. So stay tuned, वीडियो एंड तक देखिएगा, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करो इसको। ईशान, ऑन दैट नोट, थोड़ा अपने बारे में ऑडियंस को बता कि क्या बैकग्राउंड है तेरा, एंड So अभी तू क्या कर रहा है, वो थोड़ा बता ऑडियंस first of all, thanक यू फॉर इनवाइटिंग मी ओवर भैया। It's an absolute pleasure to be here. Like from being a viewer to now being able to talk to you and coming on the 4G show, it's an absolute delight for me. So I come from a completely civilian background, and so my parents originally belonged to Mahu, which is a cantonment. को। So ओके। growing up, every time there's a clear divide which is visible between a civilian and a 4G family, and it is like if someone does not know that the person is a 4G, still you'll be able to make out, that there is something different about that guy or that family or how they are taking care of themselves, how they are carrying out, and all of that. So that used to intrigue me a lot कि यार ये लोग कुछ तो अलग है, पर ये क्या अलग है? And from there, that attraction, that passion grew towards the armed forces. और मऊ में कैसा है ना, there's a yellow cantonment wall. So the whole cantonment is behind the yellow walls. So I was always intrigued कि यार ये पीली दीवारों के पीछे क्या होता है? I want to know that. So, and then you used to see all those gypsies and all those trucks, and अब मऊ में वायोस आते हैं सारे for their वायो course. So YOs are running in the evening and all of that happens. So बड़ा इलेक्ट्रीफाइंग माहौल होता है। अगर आप शाम को महू में निकल जाओगे, so आप ना चाहते हुए भी आप चाहोगे कि मैं फौजी बन जाऊं। ऐसा है माहौल एंड वहाँ यू का। आर फ्रॉम अ सिविलियन बैकग्राउंड, जस्ट टू कंप्लीट क्लैरिफाई। सिविलियन बैकग्राउंड, या कंप्लीट सिविलियन बैकग्राउंड। ग्रेट। सो फ्रॉम देयर आई वाज लाइक ठीक है, जाना तो फौज में ही है अब। दैट दिस वाज द फर्स्ट ड्रीम आई सॉ, दिस इज द ओनली ड्रीम व्हिच आई हैव सॉ, like which I've seen with all of my heart.
So, and therefore now if someone asks me कि आपको आगे क्या करना है, I'm like, एक ही सपना देखा था, वो अभी सपना ही है, पास तक गए, but that life happens then, so can't do much about it. So that's about how I wanted to join the forces, and I You're still do from which want to join school? the forces. I'm from Delhi Public School. Okay. I'm Okay, from DPS continue. Indore. Continue. Yeah. And so early on, first of all, I'm a big fan of my dad because I've always looked up to him. And he used to carry out himself in a manner which was very similar to the Fauji guys. That's why I asked you. He is your dad in Yeah, the army because I saw one of your reels yeah, yeah, and yeah, I thought कि maybe he's a army brat, but yeah. So जब भी हम लोग महू में निकलते हैं, so the people, the Faujis at the the main gates and the entrances, they salute Papa, and Papa is like, please mat karo, I'm a civilian. So that is what happens. Abhi when we were running the infantry marathon also in Mahu, so तब भी ऐसा हुआ था. It happened with me also, and it happened with dad also, that like fellow runners who are Faujis, they came around and they were like, साहब आपकी rank क्या है, and we are like, यार हम तो civilian है पूरे. वही बेरिंग ही फौजी वाली है अपनी. हाँ 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 हाँ. So वैसा था. Great. And from there, and dad always pushed me towards, not he did not push me, but as in I always used to look up to him because he was physically active, and he kept himself a certain way. He groomed himself in a certain way. He spoke a certain way, and that all of that was very similar to how we used to see the Fauji's behaving and like carrying themselves out. So I started imitating him, and then so on and so forth with time. So I became physically fit. I became active. Initially, I was pathetic at studies. So फिफ्थ क्लास तक गिरते पड़ते गाड़ी ऊपर पहुंची है. मतलब लिस्ट में फिर नीचे से ही नाम शुरू होता था, ऐसा था. एंड देन आई केम टू सिक्स ग्रेड में आया मैं, एंड देन इनिशियली डैड हैड अ ट्रांसफरेबल जॉब. सो फ्रॉम बहुत सारे सात आठ स्कूल चेंज कर चुका था मैं तब तक. And then we came to Indore, and Indore में sixth grade में I got into DPS, and from there I was like, now I do not have a lot of friends there. I know no one, so this is a fresh start. And then I began progressing, and this was the time when the Fauj wala kida came into me. So from there I started progressing academically also, non-academically also, curricular, extracurriculars, everything. And so that went on till 10th, and then 10th में I decided कि एनडीए देते हैं. So फिर 10th 11th 12th उसमें चला गया पूरा, and then एनडीए दिया. एनडीए में भी फर्स्ट अटेम्प्ट आई कुड नॉट क्लियर बिकॉज आई वाज टू ओवर कॉन्फिडेंट. आई वाज लाइक कि ठीक है, ये तो निकल जाता है, बस एक छोटा सा पेपर ही तो है और ये वो. एंड आई फेल्ड मिजरेबली. मेरा ऐसा हाल हो गया कि यार मतलब शर्म आ रही थी खुद के ऊपर कि ऐसा कैसे हो सकता है. सो फ्रॉम देयर देन नेक्स्ट अटेम्प्ट ऑब्वियसली समझ आ गया था कि कहाँ पे क्या क्या गलतियां थी. सो आई वर्कड ऑन देम, एंड देन निकल गया पेपर. एंड उसके बाद में एसएसबी था. एसएसबी in itself was a completely personality transformation process for me. क्योंकि for SSB you have to concise your personality. You have to mold it in a way that it can be assessed properly. Although it is a test of how like who you are and how you are, but if you are not able to present it in a way which is easy to interpret by the assessors, then it's of no use. So I worked a lot on that, and I refined myself, and then फिर SSB भी हो गया. Great. So it was your first attempt, Yeah, first attempt. है ना? How I did you got four prepare for first of all written का थोड़ा बता if you remember, because you were a written में. weak student as you said Yeah, initially. So initially till fifth grade I was pathetic. As in जब रिजल्ट आता था तो मुझे तो कुछ नहीं होता था, मेरी माँ बाप को उनको परेशानी हो जाती थी कि ये क्या है, क्या करे इसका. But then, and that used to make me very sad कि यार why am I letting them go through all this. So वहां से फिर पढ़ना शुरू किया, फिर इंटरेस्ट आ गया, फिर नंबर आने लगे, तो रिस्पेक्ट मिलने लग गई. तो फिर ऐसा लगा कि अच्छा इससे ये मिलता है. तो फिर और पढ़ते गए. सो ऐसे करते करते nice. बोर्ड्स में भी अच्छे नंबर आए, एंड देन टेंथ बोर्ड्स ट्वेल्थ बोर्ड्स दोनों में अच्छे आए, 95 96. एंड फिर उसके बाद में अब क्योंकि बोर्ड्स की प्रिपरेशन पूरे मन लगा के करी थी, सो उस वजह से एनडीए का जो सिलेबस था उसका बेस स्ट्रांग हो गया था मेरा.
सो आई जस्ट नीडेड टू अंडरस्टैंड कि मुझे पेपर में से एग्जीक्यूट कैसे करना है. सो उस चीज के लिए सबसे पहले आई एनालाइज 10 साल के प्रीवियस पेपर्स, और उसमें मैंने फिगर आउट कर लिया कि कौन से सब्जेक्ट, कौन से टॉपिक के कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं. मैं मैथ की बात कर रहा हूँ. एंड उसके बाद में उसमें समझ में आ गया कि मेरा क्या स्ट्रांग पॉइंट है, मेरा क्या वीक पॉइंट है, इसमें कौन से सवाल करने हैं, कौन से सवाल छोड़ने हैं. अगर एक टिप इफ यू आस्क मी टू क्लियर द रिटन एग्जाम वुड बी, प्लीज बी वेरी श्योर ऑफ व्हाट क्वेश्चंस टू लीव रादर देन व्हाट क्वेश्चंस टू डू. क्योंकि अगर आपको पता है कि आपको ये सवाल नहीं आता है, तो आप उसको छोड़ दोगे एंड यू कैन इन्वेस्ट दैट टाइम ऑन क्वेश्चंस यू ऑलरेडी नो, एंड आप उसको परफेक्शन से कर पाओगे. सो ये मिस्टेक मैंने अपने प्रीवियस एग्जाम लाइक प्रीवियस अटेम्प्ट में करी थी, जो मैंने रेक्टिफाई करी अपने नेक्स्ट अटेम्प्ट में. सो वन वुड बी नोइंग व्हाट क्वेश्चंस टू लीव, अनदर वुड बी completely analyzing the previous year questions, PYQs. PYQs को चार्ट लो बिल्कुल, क्योंकि मेजोरिटी ऑफ द टाइम्स बड़े सिमिलर क्वेश्चंस आते हैं. सो आपका सोचने का तरीका अलाइन हो जाता है उन सवालों से. एंड थर्डली, पुट अ टाइमर ऑन फॉर एवरी क्वेश्चन, आपके टाइम के हिसाब से. एंड क्योंकि अगर आप में एक्यूरेसी है बट आप में स्पीड नहीं है, सो व्हाट यूज ऑफ दैट एक्यूरेसी. सो दीज आर द 3 tips which I think is required for clearing the written exam. I saw some of your reels and you're very vocal about having good discipline and consistency and making a routine. Yeah, So let's talk about that a bit. क्योंकि ठीक है. making routine and following it for a couple of days is easy. Yeah, yeah, That's the easy part. But yeah. doing it consistently, that's what makes it tough because it's boring. It is very boring, and if it Yeah. were easy, then everyone would do it. Yeah. So So, let's talk about that. Ki, what is your opinion and how should aspirants go about it? so first of all, uh, सबके दिन में 24 घंटे ही होते हैं. इट इज ओनली अबाउट हाउ यू डिस्ट्रीब्यूट दोज 24 hours, एंड आप उन 24 घंटों में क्या कर रहे हो. आई पर्सनली जितने टाइम मैंने प्रिपेयर किया, मैं अपना फिजिकल वर्कआउट चालू रखा, मैंने जिम चालू रखा, मैंने रनिंग चालू रखी. सिर्फ एग्जाम के कुछ टाइम पहले व्हेन यू हैव टू बी कंप्लीटली लॉक्ड इन, तब फिर मैंने उसे माइनस आउट कर दिया था, बिकॉज उससे फिर बॉडी टायर्ड हो जाती है एंड ऑल ऑफ दैट हैपेंस. सो जब मैं प्रिपेयर कर रहा था, माय माय स्कूल वाज गोइंग ऑन. सो मैं 2 बजे तक आई यूज्ड टू बी इन स्कूल. आई यूज्ड टू कम बैक होम, 1 घंटे का ब्रेक, एंड देन 2 to 5 वुड बी स्टडी सेशन 1. 5 to 7 मैं बाहर खेलता था या फिर जिम जाता था, whatever. Then 7 to 7:30 freshen up, change, all of that. 7:30 to 10:30 study session 2. Dinner, फिर 11 से 4 सुबह वापस. That used to be my routine, because I was more comfortable studying at night, because मेरे को बड़ा सुकून मिलता है रात में. कोई परेशानी नहीं, कोई फोन नहीं, कोई मैसेज नहीं, कोई घंटी नहीं. इसलिए दिन में मेजोरिटी ऑफ द टाइम्स आई यूज टू डू मैथ, एंड रात में मैं हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, बेसिकली जीएस वाला पार्ट करता था. और जो Great. सुबह कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं उसके क्वेश्चंस अगर क्लियर नहीं है तो फिर वो करता था. Great. थोड़ा एसएसबी के ऊपर आते हैं. Apart from your personality, what all aspirants should do by themselves before when they clear their written and SSB is expected? So first of all, you need to, like, the aspirants need to understand कि it is not a test of your physical capabilities. It is about, it is all about how you think here, what's going on here, how it comes out from here. So how you think, how you speak, how you react, and how you behave and coordinate with your peers. SSB is just all about that. So when I went in, I was physically in a decent shape. So मेरे हिसाब से ना SSB में it is very important to establish a dominance in your group. And that establishment of dominance does not happen during the tasks. ये बड़ा मैं ऐसा डार्क सीक्रेट बता रहा हूँ एसएसबी के बारे में, जो मैंने पर्सनली फिगर आउट किया है. सो द डोमिनेंस अमंग द पियर्स हैपेंस आउटसाइड द टास्क. जब आप अपनी लाइंस में हो, जब आप अपने बेड पे मस्ती कर रहे हो, एंड जहां पे तब आप जो कॉन्वर्सेशंस करते हो, तब आप जो द वे यू कैरी आउट योर सेल्फ, तो वहां पे लोग आपका इंप्रेशन बनाते हैं. एंड एट द एंड ऑफ द डे अगर ऐसे देखा जाए, सो यू जस्ट हैव टू बी बेटर देन दोज 100 guys देयर. आपको कोई नहीं बोल रहा कि आपको 10,000 लोगों से बेहतर होना है, नहीं होना. आपको सिर्फ वो 100 लोगों से बेहतर होना है. सो इफ यू आर एबल टू असर्ट
dominance there, it is very easy for you to excel in SSBs because उस वजह से आप में कॉन्फिडेंस आएगा, आपका जीडी क्लियर हो जाएगा, आप लेक्चरेट में अच्छा बोलोगे, जीटीओ में लोग आपको बुलाएंगे कि ठीक है आप हमारे टास्क में आ जाओ. सो स्नेक रेस में आपको बोलेंगे कि आप लीड करो. ऑल ऑफ दैट हैपेंस देयर. एंड अ मेजर फैक्टर हाउ दिस कैन बी इनिशिएटेड इज बाय बीइंग फिजिकली फिट. आधे लोगों को कॉम्प्लेक्स क्या होता है कि यार उसकी बॉडी देख, वो ऐसा है, वो भागता है, वो दौड़ता है. सो जब भोपाल में हमारा एसएसबी चल रहा था, सो वो जो रोप्स होती है, जो मैं भूल गया उसे क्या कहते हैं, सो उसमें वो L1 L2 L3 होते हैं ना, लेवल्स होते हैं. सो आई यूज टू क्लाइम दैट पूरा एल बना के, आई यूज टू क्लाइम देयर, ऊपर टच करके नीचे आ जाता था मैं. Oh, एंड एवरीवन यूज टू लाइक बी लाइक कि यार ये वो है यार, ऐसा है. तो ऐसे छोटी छोटी चीजों से यू assert dominance there. yeah. और फिर उसके बाद में, क्योंकि पढ़ के मैं गया था फौज के बारे में, जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स, एंड सो आई हैड अ गुड ब्रॉड बेस ऑफ नॉलेज एंड स्किल, एंड इट वाज बैक्ड बाय इंग्लिश. अब वहां पे जो बच्चे आते हैं उनको इंग्लिश में भी दे आर नॉट वेरी फ्लुएंट. टू बी वेरी ऑनेस्ट, they are not very fluent. They are able to express themselves, but if someone is able to speak English fluently in front of them and is able to convey whatever he or she is feeling, so that gives that person an upper edge for sure. And that's how a certain amount of dominance is asserted in the group. The only stage I was underconfident about during the SSB was the screening. क्योंकि उसमें the 100 people there are complete strangers, and usme you have to be very very smart to be able to speak properly, to be able to solve your OIRs properly. So I think getting screened in is 50% luck, because आपके ऊपर है कि आपका ग्रुप कैसा होता है, and it's 50% skill, and rest it's 100% skill. This is what I believe. You were talking about communication skills. So Yeah, we run a communication cohort. It's a 2 month long program जिसमें we work with 10 defense aspirants. yeah, So we work in small groups of 10 students, and on पे we leave a communication trainer, and that professional communication trainer, she has experience of like 7 8 years. yeah, She's trained thousands of candidates, and they our trainers, they train our students for over a span of 2 months. And one thing which I've seen in them is that they can communicate very well, but somewhere they lack the confidence. yeah. So we conduct lots of activities and all. But according to you, what should be the way if someone wants to improve their communication skills? I think first of all they should be very very comfortable with who they are, on the inside as well as on the outside. जहां आप फेक करने की कोशिश करोगे, the moment you will try to become someone or something which you are not, तो आपका कॉन्फिडेंस उसमें शेक हो जाता है. So step one would be completely own yourself, completely be accepting of who you are and how you are, accept your flaws, accept your strengths, and then play with them accordingly. So first is this. Second is, have a set of words that you are very comfortable using with. No fancy words, basic words which you are able to communicate with efficiently and properly. एक अच्छा कम्युनिकेटर वही होता है जो कम शब्दों में अपनी बात पूरी तरह से कम्युनिकेट कर पाए. सो फॉर दैट यू नीड टू हैव अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ लैंग्वेज वर्क्स. आपको you need to have a basket of words which you are able to intervene and intertwine and then make a nice word and a sentence with that, and then communicate your expression or your feeling, whatever it is. So I think these are the two major factors. And thirdly, I think the third and most important factor would be, look into the mirror and talk to yourself. People don't talk to themselves, and that is why they don't know what's going on the inside. You have to be extremely sure of what's going inside. तभी आपकी आवाज जब आपके मुंह से निकलेगी तो उसमें जिगरा, उसमें दम फील होगा सामने वाले को. So talk to yourself a lot, and stay in moments where there is absolute boredom, where there is silence. And it'll be in those moments where, you'll find yourself, you'll find your voice, you'll find your passion. And that brings confidence and that enhances communication. Great. Now you have cleared your SSB. You Yeah. have
You are in top 150 NDA merit list में, Yeah, and but you have experienced a failure कि yeah, medically you're not fit. yeah. So how, what was your reaction first of all? Like, how did you deal with it? How do you cope with such setbacks? So first of all, I did not see this coming at all, that I would be medically unfit for any XYZ reason. They gave me an unfit certificate, and you cannot pretty much do anything about it if your appeal medical board, your review medical board, all of that are over. So you have to be very accepting of the fact that जो है अब यही है, and you can't run away from it, because if you don't accept, you won't improve. And अगर acceptance ही नहीं है, so forget improvement. So first of all, you have to be very accepting of what has happened and take complete responsibility. I see people, अगर हम रिटर्न की बात करें, so I've seen hundreds of people who are like कि उस साल पेपर ऐसा आया था, उस साल पेपर वैसा आया था, और मैं तो पूरा पढ़ के गया था। अगर तू पूरा पढ़ के जाता तो पेपर क्लियर कर लेता। तू पूरा पढ़ के नहीं गया, इसलिए तूने पेपर नहीं कर क्लियर किया, और अगर ऐसे चलता रहा तो अगली बार भी नहीं करेगा। सो बी बेयर ट्रूथफुल टू योर सेल्फ, अंडरस्टैंड दैट अगर तुम खुद से झूठ बोलोगे तो तुम खुद की नजरों में ही गिरोगे। सो that's my most important advice I'll give to anyone who has gone through a failure, that accept it wholeheartedly. This is something that will build you more than it will break you. And that's my commitment. You can come into my DMs and talk to me about it. And I can give you hundreds and thousands of examples where a success story starts with a big ass failure. So it is completely okay to fail. You are trying, therefore you are failing. There are people who are not even trying. So it is okay to fail and be accepting of the fact that you're failing. I think that's my way to deal with it. And then on top of that, once you have accepted that, ठीक है, अभी real time scenario ये हो रहा है मेरे साथ में, and how do I proceed further? So then you chalk out your plan. Then you understand कि भाई, where do I see myself in time now? What options do I have in hand? So मेरे साथ में एसएसबी इंटरव्यू में जो मेरे इंटरव्यूइंग ऑफिसर थे, उन्होंने मेरे से पूछा था that, okay, Shan, tell me, what if I don't select you today? What would you do? So मैंने कहा था कि sir, I would enroll myself in a private college, whichever college I am getting. I'll enroll myself for a course in nutrition, and I'll continue being what I am. Okay. And that is precisely what I did, and that is precisely what I'm doing. You're in which college? I'm in NMIMS. Okay. Nasim only. Yeah, Mumbai में. Great. And which is the course you're pursuing? BTech Mechanical. Okay. And what about nutrition? Nutrition में my diploma, I am currently pursuing my diploma in nutrition. So that'll be, I'll get done with it this month itself. Great. And Wonderful. yeah. And as a byproduct of all of this, I started creating content. So content Okay. happened as a byproduct of both of these things, because मेरे पास में फ्री Nice. टाइम था, and I was like कि ठीक है, जो मैं कर रहा हूँ मेरे हिसाब से वो बड़ा कूल है, तो लोगों को देखना चाहिए। उसके बारे में बात करेंगे कि क्या कर रहा है, बट उससे पहले एक चीज मैं इसके बारे में और पूछना चाहता हूँ। I want to expand on a particular part. How do you forget about it? You आपका can never ब्रेकअप forget हो गया, about it. यस, आपका ब्रेकअप हो गया, आप मेडिकल आउट हो गए, कुछ सेटबैक है, हाउ डू यू फॉरगेट अबाउट इट? You can never forget about it, and you don't have to forget about it. आप जितना कचरा कारपेट के नीचे डालोगे, वो उतना कचरा इकट्ठा होता जाएगा। वो आपका फेलियर है, आप उसको उतने ही प्राउड से अपने शोकेस में सजा के रखो कि मैंने एटलीस्ट ट्राई किया। मैं हारा, मैं कोई बात नहीं। हारना 50-50 चांस होता है ना हमेशा, या तो आप हारोगे या तो आप जीतोगे। मैं हारा पर मैंने कोशिश करी। बी वेरी फकिंग प्राउड ऑफ द फैक्ट दैट यू गेव योर बेस्ट, एंड फॉर दैट यू हैव टू बी वेरी ट्रूथफुल इन योर एफर्ट, एंड यू हैव टू जस्ट गो ऑल इन। आपने आपने जहां होल्ड बैक किया, फिर आपको रिग्रेट्स किक इन होने लग जाएंगे कि यार मैं फेल हो गया क्योंकि उस दिन मैंने ऐसा किया। मैंने वो सब्जेक्ट, अगर मैं वो चैप्टर पढ़ लिया होता तो ये नहीं होता। दैट इज बिकॉज यू आर नॉट गिविंग ऑल ऑफ इट इन टू द प्रोसेस। सो बिल्कुल। व्हेन यू गिव all of yourself and all of your energy into a task, irrespective of you fail or you pass or whatever, you would learn so much from it that will transform you as a person.
एंड दैट इज व्हाई आई ऑलवेज से कि भाई जो भी करो पूरे मन से करो, सच्चे मन से करो और पूरा करो. Was that your last ND attempt? इट वाज माय लास्ट इंडिया अटेम्प्ट. Damn. चलो ठीक है, we wish कि CDS के थ्रू हो जाए if you attempt. मुझे तो वो वाले एंट्रीज भी मिलेंगे ना, इंजीनियरिंग वाले एंट्रीज भी आई गेट. Yeah, TGC and all. That या is like TGC, I feel is better because आई डोंट नो. आई candidate seniority you get, and then या you get some money also. या So permanent commission भी है. So win-win. लेट्स सी. Nonetheless, थोड़ा इसके बारे में बता अब, regarding what you are doing currently. ये है जो मैं सुनना चाहता हूँ. ये तो हो गया SSB and how what all happened. Then what you did after that, which makes it inspiring. तो वो थोड़ा ऑडियंस को बता कि क्या भाग रहा है, क्या खा रहा है, क्या कंटेंट बना रहा है, थोड़ा बता यार ऑडियंस को. मैं अपना रूटीन बता देता हूँ, एक काम करता हूँ मैं. हाँ, ठीक है. तो सबसे पहले आई एम अ फुल टाइम कॉलेज स्टूडेंट. मैं दिन में कॉलेज जाता हूँ. एंड देन आई डू अ फुल टाइम जॉब along with that which is online. ओके. So along with that I create content, and then I take care of myself and the people around me. So that is how my day goes. So ग्रेट. in the morning when I wake up, I have my breakfast, I have my meal. I pack one meal for college. I have that meal in college. I get done with college. I come back home. I cook another meal. I have that meal. Then I work out. ये सब के दौरान काम चल रहा होता है on phone, on laptop. So that continues there. And then I work out, or if it's my run, then I go out for a run. And then I come back home and then I work. So या फिर कुछ कॉलेज का अगर कुछ काम होता है तो मैं वो काम करता हूँ. एंड ये जो पूरा प्रोसेस है ये मैं रिकॉर्ड करता हूँ. सो माई कॉन्टेंट इज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ व्हाट आई एम डूइंग. ओके. इट इज नेवर एज इफ कि मैं बाहर निकल रहा हूँ कि चलो आज शूट करने चलेंगे. ऐसा कभी नहीं होता. मैं ओके. सिर्फ कैमरा चालू कर देता हूँ, जो चीज मैं कर रहा हूँ उसके सामने सिर्फ यही दिस इज माई कॉन्टेंट. एंड आई थिंक दैट इज वाई पीपल आर एबल टू रिलेट टू इट बिकॉज इट इज वेरी रॉ. मैं कभी कुछ स्क्रिप्ट नहीं करता, मैं कभी कुछ नहीं करता. जो मेरे मन में आता है मैं बोलता हूँ. आपको सेंस क्रिएट करता है तो आप देखो, आपको नहीं करा आप 100 दूसरे लोग हैं, उन्हें देख लो. सो ग्रेट. दैट इज हाउ आई फंक्शन. अपने एंड एथलेटिक अचीवमेंट्स के बारे में बता थोड़ा ऑडियंस को. सो मैं एक नेशनल लेवल स्केटर हूँ. आई ओके. आई हैव डन स्पीड स्केटिंग. आई प्लेड रोलर हॉकी. आई प्लेड रोल बॉल. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट मैंने स्टेट लेवल तक फुटबॉल खेली है. एंड क्योंकि अब टांगों में जान थी, सो फिर भागना तो शुरू किया हुआ ही था काफी पहले से. सो आई आई रैन माय फर्स्ट हाफ मैराथन इन फोर्थ ग्रेड. या सो ओके. एक्चुअली इट वाज बिकॉज ऑफ पापा ओनली. पापा साइंड ओके. अप फॉर अ हाफ मैराथन एंड ही वाज लाइक तेरे को चलना है. मैंने बोला चलो. सो ही साइंड मी अप फॉर अ 10 किलोमीटर. सो द लूप ऑफ द रेस वाज सच दैट 10 किलोमीटर वालों को एक लूप भागना है एंड 21 वालों को दो लूप भागना है. So Papa was like, I ran my first loop and Papa was like, और भागना है. मैं बोला चलो. And then I ran another loop with him. And so the race organizer unofficially gave me a medal also. ओह कि वाह. यार इतना, as in, because I was very small then. I या might have फर्स्ट been the, क्लास तो बहुत yeah, छोटा. I might have been the youngest finisher unofficially. So I started running in fourth grade. So I've been running for like a lot of time now. तो एंड इस बीच में आई थिंक आई हैव डन 20+ हाफ मैराथन्स विच आर रजिस्टर्ड. ट्रेनिंग वालों की तो मैं बात करता ही नहीं हूँ. या. आई हैव डन अराउंड 5 full marathons and I've done one ultra marathon which was a व्हाट 6 hour इज run. अल्ट्रा मैराथन? Ultra marathon is any race which is above 42 kilometers. Okay, so how So much was that for? I ran for six hours. So it was a stadium run. So you have to continuously run for 6 hours irrespective of the distance you cover. Okay, So I covered 60 kilometers in 6 hours. great, great. Yeah. Right, So right. so that's about my athletic achievements so far. And next week I'm running Mumbai Marathon. So let's see how that goes. All the best. I Yeah. only time I have crossed 60 kilometers was in India only. Yeah. Great, yeah. Um, if someone wants to get into marathon running Yeah. and fitness in general, so what are the few things they should keep in mind, and through diet and
व्हाट इज योर वर्कआउट रूटीन, उसके बारे में थोड़ा एक्सपैंड एलैबोरेट करके बताना। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल द इजिएस्ट वे टू गेट इनटू फिटनेस एज अ कॉन्सेप्ट इज रनिंग, क्योंकि रनिंग में आपको कुछ नहीं चाहिए होता, आपको सिर्फ जूते चाहिए होते हैं, वो भी अगर आपका मन है तो पहना, वरना नंगे पैर दौड़ लो। सो जस्ट पुट ऑन योर शूज एंड रन फॉर टाइम, डोंट चेज एनी डिस्टेंस व्हेन यू आर स्टार्टिंग आउट। डू नॉट थिंक कि भाई मेरे को 5 किलोमीटर करना है, मेरे को 10 किलोमीटर करना है। आपको 30 मिनट दौड़ना है, उसमें आप 1 किलोमीटर करो, आप उसमें 50 किलोमीटर करो, आपको जितना करना है आप करो, but just run for 30 minutes and then gradually progress. Keep running for 30 minutes, 35, 40, 45, 50, and so on. And as you gain experience, then you start to focus on, then you observe a pattern कि भाई मैं एक हफ्ते से 30 मिनट दौड़ रहा हूँ और मैं एक्स वाई जेड लेवल पे कंफर्टेबल हूँ। एंड देन यू स्टार्ट ट्रैकिंग कि अच्छा ठीक है, अब मैं कंफर्टेबल हूँ, सो मैं कितना डिस्टेंस कवर कर रहा हूँ। एंड दैट्स हाउ यू प्रोग्रेसिवली ओवरलोड। सो एक कॉन्सेप्ट होता है फिटनेस में, इट्स कॉल्ड प्रोग्रेसिव ओवरलोड। सो देन यू ग्रेजुअली इंक्रीज द लोड, इधर बी इट विथ टाइम, as in terms of timing or in terms of pace. So that's how you start with running. And I would suggest that if you are a defense aspirant, फुल मैराथन, हाफ मैराथन मत सोचो अभी इस चीज के बारे में, क्योंकि ये चीजें इट टेक्स अ टोल ऑन योर बॉडी एंड यू हैव टू डिवोट अ लॉट ऑफ टाइम टू इट। यू कांट बी अनसीरियस अबाउट इट, बिकॉज इफ यू आर अनसीरियस इट विल कॉज यू इंजरीज, एंड फिर आपके मेडिकल में आपको प्रॉब्लम हो सकती है उससे, बिकॉज यू आर रनिंग विथ जीरो गाइडेंस एट ऑल। So that's how you have to go about it for running. If I talk about strength training, so for strength training, first of all, either there are two ways to go about it. Either you can do body weight, which is called calisthenics, or you can do resistance training, which is in the gym using equipment and dumbbells and all of that. I personally prefer strength training because body weight में मेरे को वो kick नहीं मिलती है. Although I'm amazed by the stunts and the front lever and back lever which people do, वो पूरा pull up bar के ऊपर, they form an L and all of that. So that's very intriguing for me, but I personally am not able to do that for a long period of time. एक brief phase आया था जब कोविड के टाइम में, जब gyms बंद हो गए थे, so I went full blown into calisthenics. So उस टाइम ये सब मैं ह्यूमन फ्लैग वगैरह वो सब करने लग गया था. And so in order to start with calisthenics, be amazing at push-ups and pull-ups. And you have to have a very strong core. Now with core, I not only mean your abs, but core also involves your lower back and back muscles also. क्योंकि जब आप टाइट कर रहे हो अपना कोर, so सब कुछ टाइट होना चाहिए. That is how your body would be able to load, like bear its own load. So, and for that, you have to be good with crunches and sit-ups and all of that. Basically, training your abs and your lower back. So, उसके बाद में, and then there are a lot of courses online. YouTube पे भी there are a lot of resources which tell you कि day wise आपको क्या करना है for calisthenics. For strength training, it is very simple. Just get into a gym. Day 1 से लेके जब तक आप करोगे, अगर आप वहां पे सिर्फ जा भी रहे हो एंड लाइक यू आर नॉट अवेयर ऑफ व्हाट टू डू, अगर आप थोड़ा बहुत भी कर लोगे, सो इट्स अबाउट बीइंग फेमिलियराइज्ड टू द प्लेस. सो आफ्टर यू आर फेमिलियराइज्ड टू द प्लेस, आफ्टर दैट देन कम्स इन कि आपका ट्रेनिंग प्लान क्या होना चाहिए, आपका न्यूट्रिशन क्या होना चाहिए. एंड आई थिंक फॉर अ डिफेंस एस्पिरेंट, ट्रेनिंग 4 times a week इज इनफ. एक दिन आपने अपने लेग्स ट्रेन कर लिए, एक दिन आपने अपना the pushing movements, the chest and the shoulders and the triceps. फिर एक दिन आपने पुलिंग मूवमेंट्स कर लिए जिसमें आपका बैक आता है एंड आपके बाइसेप्स आते हैं. एंड देन एक दिन आपने whatever you feel like, आपको आर्म्स करने हैं आप आर्म्स कर लो, एक आपको एब्स करने हैं आप एब्स कर लो, आपको दोनों करने हैं आप दोनों कर लो. सो ऐसा. एंड whenever you are engaging yourself in a physically intensive activity, so please take care of your diet. डाइट में आपने, मैं कभी नहीं कह रहा कि आपको डे 1 से सप्लीमेंट खाने हैं, आपको वे प्रोटीन खाना है, ऐसा कुछ भी नहीं है. अगर आपके घर में अंडा चिकन आप लोग खाते हो तो खाओ, नो वरीज. अगर नहीं खाते, इट इज लिटिल डिफिकल्ट फॉर अ वेजिटेरियन गाय टू कंप्लीट देयर प्रोटीन रिक्वायरमेंट्स, क्योंकि आप कितना ही पनीर खा लोगे, आप कितनी दाल खा लोगे. सो एंड इन सच सिनेरियोज देन सप्लीमेंट स्टेप इन. तब फिर आप सोचते हो कि यार चलो ठीक है, एक स्कूप वे प्रोटीन ले लेता हूँ मैं. पर्सनली मुझे भी घर पे कन्विंस करने में बहुत टाइम लगा था that whey protein steroid नहीं होता है, इससे कुछ नहीं होता है, it's completely natural.
आई कैन ऑल्सो एक्सप्लेन कि वे प्रोटीन कैसे बनता है फॉर ऑल ऑफ द पीपल वॉचिंग। आप लोग अपने मम्मी पापा को भी ये चीज दिखाना, अगर आपको वो अलाउ नहीं कर रहे वे प्रोटीन लेने के लिए। सो वे प्रोटीन इज बेसिकली जब आप दूध को फाड़ देते हो, सो एक पानी बनता है और एक पनीर बनता है। पनीर को लोग ऐसे भी खा लेते हैं, एंड द वाटर विच इज लेफ्ट, दैट वाटर is also very high in protein. So that water is then processed and formed into powder, and that is your whey protein. So you can understand that it is completely natural. इसमें कुछ भी ऐसा नहीं होता which is artificial या फिर which is harming your, you know, son's or your daughter's body. So एक्चुअली वो मार्केट में फेक प्रोटीन बॉक्सेस की वजह से ना इतना हाँ 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 गलत माइंडसेट बन चुका है आप लोगों का हाँ हाँ कि हाँ, इसको खाएंगे तो लिवर डैमेज हो जाएगा, किडनी डैमेज हो वही है जाएगा। वही है वही है। इफ यू टेक प्रोटीन फ्रॉम अ गुड ब्रांड एंड वो असली है, लाइक इट्स द या रियल डील, देन या यू आर क्वाइट सेफ आई फील। एंड आजकल तो या प्लांट बेस्ड भी आने लग गए हैं, लाइक हाँ, प्लांट बेस्ड भी अच्छे हैं, नॉर्मल वे प्रोटीन्स आर ऑल्सो नाइस। एंड बस बेसिकली ये है कि यार 2-3 हज़ार रुपए बचाने के चक्कर में डोंट बाय समथिंग विच इज ऑफ या इंफीरियर क्वालिटी, जो नकली हो, बिकॉज इट कैन हैव बैड इम्पैक्ट्स ऑन योर बॉडी इन द लॉन्ग टर्म, क्योंकि आपको नहीं पता है कि आप अपनी बॉडी में क्या डाल रहे हो। एंड सो प्लीज बाय योर सप्लीमेंट्स इफ यू बाय फ्रॉम ट्रस्टेड सोर्सेज। एंड आजकल तो पनीर भी फेक आने लग गया है, बाय द वे। हाँ, पनीर भी फेक आता पनीर भी है। फेक आता है आजकल। सो ये सब सब जगह चल ही रहा है। सो बी वेरी केयरफुल फ्रॉम वेयर यू आर सोर्सिंग द प्रोडक्ट्स विच यू आर इंजेस्टिंग। सो ग्रेट। दैट्स अबाउट न्यूट्रिशन। एंड अगर प्रोटीन रिक्वायरमेंट की बात करेंगे, सो एम टू हैव, अगर आपका बॉडी वेट फॉर एग्जांपल मेरा 65 ग्राम्स है, सो आई ट्राई टू ईट फ्रॉम 100 to 120 ग्राम्स के बीच में प्रोटीन, दैट्स ऑल। सो इट्स हैव टू बी, इट नीड्स टू बी 1.3 to 1.5 grams, that's it, बट ज्यादा। ये जो फिगर है, ये आई सीन एवरी पर्सन हैज देयर ओन थ्योरी। 0.8 से शुरू होता है एंड देन इट गोज अप टू 2 ग्राम्स हाँ की, हाँ डिपेंड्स हाँ, कि वो एक्सपर्ट। एक्चुअली देयर सो मेनी स्टडीज ऑन दिस। इट इज अ टॉपिक ऑफ डिबेट, पर या उसमें मेरा मानना यह है दैट इफ योर एंड गोल इज नॉट टू गेट वेरी बल्की, या फिर आपको प्रोफेशनली compete नहीं करना, तो आपकी बॉडी पे आप फालतू में लोड मत डालो। अगर आपको सिर्फ फिट रहना है, इवन 1 ग्राम वुड डू, 1 to 1.5 grams चलेगा। You won't gain muscle very rapidly, but if you are doing it to just to stay fit, then it is enough for you. ग्रेट। तू स्टड है, मैराथन भागता है, जॉब भी करता है, और टाइम मैनेजमेंट के ऊपर थोड़ा बताओ ऑडियंस को कि टाइम मैनेजमेंट का कैसे करें लोग। So दिन तो सुबह होने के पहले मेरा दिन रात में शुरू हो जाता है। When I am ओके। preparing my meals, when I am planning my day, क्योंकि दिन में मेरे को टाइम नहीं मिलता है, and it is very difficult for me to stick to my diet plan also, attend college also, do my job also, and then create content along with that and not miss my workouts. So for that I need to very properly plan, and इसके लिए मैंने अपना एक प्लानर भी फ्री ऑफ, एज इन इट्स अ फ्री रिसोर्स। अगर आप मेरे इंस्टाग्राम ब्रॉडकास्ट चैनल पे जाओगे, इट्स कॉल्ड द जोश प्लानर। सो आई आई यूज दैट, एंड मैं आपको भी आई सेंड द लिंक एंड यू कैन पुट इट इन द डिस्क्रिप्शन बिल्कुल फॉर। श्योर, हिज इंस्टाग्राम आईडी इज ऑलरेडी इन डिस्क्रिप्शन। तो डू चेक हिम आउट, फॉलो करो इसको। इज अ ग्रेट रोल मॉडल फॉर ऑल एस्पिरेंट्स। हाँ। सो दैट्स द प्लानर विच आई हैव डिजाइन माई सेल्फ, बिकॉज एक पेपर पे पॉइंट्स लिखना इट इज वेरी बोरिंग। सो मैंने सोचा कि क्यों ना लेट्स मेक इट इंटरेस्टिंग, एंड देन आई कैन हेल्प अदर पीपल ऑल्सो विद दैट। सो उस प्लानर का लिंक आई गिव इट टू यू एंड यू कैन पुट इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। जिसको भी चाहिए यू कैन जस्ट डाउनलोड इट एंड प्रिंट इट आउट एंड यू कैन यूज इट। उसमें हर घंटे के हिसाब से यू कैन एलोकेट योर टास्क, and I use that for it. So that saves a lot of my time, and that also gives me time to, जिस जो मेरा फ्री टाइम है, जिसमें मुझे कुछ नहीं करना। एंड फिर उस टाइम में मैं किताबें पढ़ता हूँ, मैं पॉडकास्ट देखता हूँ, मैं बकचोदी करता हूँ बस। ओके, ग्रेट। ईशान, कोई गर्लफ्रेंड है? गर्लफ्रेंड नहीं है। झूठे यार, मैं बस ये नहीं बोल कितना। रहा मेरी गर्लफ्रेंड, मैं ये नहीं बोल रहा मेरी गर्लफ्रेंड नहीं रही है, मैं बोल रहा हूँ मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है। ओके। हाउ टू डील विद ब्रेकअप्स? आप बहुत लोगों के रिप्लाईज आते हैं एंड आई थिंक तू थोड़ा एक्सपीरियंस्ड होगा।
तो थोड़ा बताया इस बारे में। यार, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू बी एक्सेप्टिंग ऑफ द फैक्ट कि चीजें सही नहीं चल रही हैं, एंड देयरफॉर पीपल like your partner would want to withdraw from the equation which you have, or you would want to withdraw from the equation that you guys have. So first of all, accept that fact. Secondly, if it is something you guys can work on together, amazing, काम कर लो साथ में, चीजें सॉर्ट हो जाएंगी. अगर नहीं हो पा रहा, don't stretch the chewing gum to the point that it breaks off, क्योंकि वो फिर दोनों के लिए परेशानी हो जाती है. एंड मान लो कि ब्रेकअप हो भी गया, सो आफ्टर यू गाइस हैव ब्रोकन अप, ना तू खराब है ना वो खराब है, बिकॉज both of you guys are the same people who are madly in love with each other, right? Then suddenly ऐसा क्या हो गया भाई कि देखो सबसे खराब इंसान लगने लग गई दुनिया में? ऐसी कोई दिक्कत नहीं है. इट इज जस्ट दैट शी इज नॉट रॉन्ग, यू आर नॉट रॉन्ग, द टाइम इज नॉट राइट. Uh, many boys on question me this, and I'm sure तेरे को भी कुछ तो DM में भी आए होंगे regarding porn addiction and masturbation addiction. हाँ, आते हैं, बहुत So सारे आते हैं. हाँ, so because it's a real deal with teenagers. I'm sorry अगर background में funny noise आ रहा है, मेरा dog है. So It is a lot, it is a very big so problem. बदतमीजी मत करो यार, वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है. सॉरी. Guest appearance. हाँ, So it पता है. हाँ, so it is a very big problem. मेरे को भी काफी सारे डीएम्स आते हैं, एंड आई थिंक यू हैव टू बी, अगेन, अगर आप इस चीज से भागोगे कि नहीं नहीं मेरे को तो कोई एडिक्शन नहीं है, वो तो बस कभी कभार हो जाता है ये वो, तो With देन यू आर जस्ट फकिंग अराउंड विद योरसेल्फ एंड योर करियर, एंड फिर आप इस ट्रैप से कभी बाहर आ ही नहीं पाओगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल बी एक्सेप्टिंग ऑफ द फैक्ट कि भाई ठीक है, मैं इस चीज में फंसा हुआ हूँ. देन अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज ट्रिगरिंग दिस. Instagram is full of soft porn. I would highly, highly, highly suggest that whatever account you use, create a new account, follow only those people who are genuinely adding value to your life, and make that your primary account. देखो, मैं ये नहीं बोल रहा इंस्टाग्राम से हट जाओ, बिकॉज इट इज प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल. आजकल वो एक मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन हो गया है. सो क्रिएट अ न्यू अकाउंट, क्योंकि वो एल्गोरिदम बड़ा स्मार्ट है. अगर आपने एक टिट पिक्चर लाइक कर दिया, आपकी 100 भर देगा. So for that, you need to create a new account. So create a new account, follow good, valuable pages that provide like good quality content to you, and understand your triggers, and yeah, delay self gratitude as much as you can. अगर आपके दिमाग में उस उस एक्शन कोई चीज से लिंक्ड है, एंड इफ यू आर फेसिंग दैट, सो टेल योरसेल्फ कि मेरे को ये नहीं करना है. डाइवर्ट दैट एनर्जी टू समथिंग एल्स. अगर आपको मन हो रहा है, गो डू फकिंग 10 पुशअप्स. आपको नहीं मन होगा उसके बाद में. सो डाइवर्ट दैट एनर्जी टू समथिंग विच इज मोर कंस्ट्रक्टिव. do दिस इज you दिस read about David Goggins and क्या नाम है उसका, जैको, नेवी सील जो है, जैको विलिंग. एक्सट्रीम ओनरशिप. हाँ हाँ, मैंने सबका पढ़ा हुआ है. यार बट दे दोस गाइस आर सो इंस्पायरिंग. ऐसा लगता है यार फेक है, मतलब ऐसा लगता है मेरे को कभी हाँ, एक कभी, एक पॉइंट लाइक के बाद इट्स में लगता है, एक पॉइंट के बाद में लगता है too that, like, is it just for social media? But when I read and when Joe Rogan says कि he discusses, तो मुझे ऐसा लगता है यार क्या पता असली हो, मतलब हाँ ऐसी हाँ, हो. या. एंड That's the जोको tough विलिंक, part. इफ यू फॉलो जोको विलिंक ऑन इंस्टाग्राम, उसका रोज सुबह 4:30 रोज बजे का सुबह उसका घड़ी का 4:30 फोटो वो होता अपनी है. घड़ी की वो डालता है फोटो. सो अब तो अब तो वो सर्विस में है भी नहीं, बट दैट डिसिप्लिन हैज मेड दैट गाय हु ही इज, एंड बिल्कुल. दैट इज व्हाट कंसिस्टेंसी एंड शोइंग अप एवरी डे फॉर योरसेल्फ इज ऑल अबाउट. लेजेंड, लेजेंड है या, यार. लेजेंड, लेजेंड है. ग्रेट. On that note, ईशान, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग सच अ लवली गेस्ट. बहुत अच्छा लगा तुझसे बात करके, बड़ा मेच्योर्ड कंटेंट था. वी लुक फॉरवर्ड कि आगे जाके वी अगेन इनवाइट यू एंड यू एक्सेप्ट आवर इनविटेशन एंड वी कैन ऑफ कोर्स डिस्कस आई फ्यू विल डू, ऑफ थिंग्स. कोर्स. बट जाने से पहले, एनी लास्ट मैसेज फॉर द डिफेंस एस्पिरेंट आउट देयर जो इज वर्किंग हार्ड, इज प्रिपेयरिंग, नहीं हो रहा है, उसका रिटर्न नहीं हो रहा है, या एसएसबी नहीं हो रहा है, कहीं ना कहीं रह रहा है, या
इसका फर्स्ट अटेम्प्ट है, एनी मैसेज फॉर दैट एस्पिरेंट आउट देयर? See, the only message I'll want to give is that don't make your plan B so important that you divert your actions of plan A towards plan B. आपका बैकअप आप अगर इतना स्ट्रांग रखोगे तो आपका जो मेन आपका जो टास्क है आपका ध्यान उसमें से भटक जाएगा ना. आप यू विल स्टार्ट टू चैनलाइज योर एफर्ट्स एंड एक्शंस टुवर्ड्स द अदर थिंग बिकॉज आपको अब इतना सॉलिड बेस बनाना है. इसका मतलब आपका संकल्प कमजोर है ऑलरेडी about your primary task, and so you are working harder towards your secondary task. So this is what I did, that do not have a plan B. Now this might sound very contradictory, but do not have a plan B. कोई जल्दी नहीं है किसी को भी. आपका नहीं होगा, कोई बात नहीं. अगर आपका संकल्प मजबूत है आप दोबारा कोशिश करोगे. I don't agree to what you're saying, but I Yeah, will respect that's your what I right said. to say That's it, what I said, that it's completely because contradictory. अब something like career in armed forces इतना uncertain है, medical It है, is. merit Yeah, है. it is. Yeah. There are people who have got recommended twice thrice और वो merit out हुए हैं. इस बार की merit list की बात कर रहा हूँ मैं. आई एम श्योर तू ही काफी जानता होगा लोगों को, merit जानता out हूं मैं, वाले मेरे को. काफी सारे दोस्त हैं. Yeah, and you yourself have got medical SSB medical Yeah, out. yeah. So मुझे लगता है कि बैकअप प्लान होना चाहिए डेफिनेटली. इट शुड नॉट बी लाइक कि तुम फुल टाइम उसको परस्यू कर रहे हो, अदरवाइज तो ऐसा लगता है कि यू आर नॉट गिविंग लाइक योर 100%. बट व्हाट इफ, लेट्स से व्हाट इफ बंदा एनडीए रिटर्न की तैयारी कर रहा है, एंड व्हाट इफ एनडीए रिटर्न की जगह वो जेई की तैयारी करे, तो ऑटोमेटिकली उसका एनडीए तो रिटर्न तो हो ही जाएगा, एंड ही विल हैव अ गुड कॉलेज टू गो टू इफ ही डजंट मेक इट. See, इसकी शुरुआत वहीं से होती है that you are giving 100% of yourself in school. अगर आप स्कूल में अपना 100% दे रहे हो, सो आपको ऑलरेडी एक आपका बेस आपकी फाउंडेशन अच्छी स्ट्रांग है. सो उस वजह से आपका एनडीए नहीं हो. एंड विद बाय me saying कि do not have a plan B, that does not mean that do not think in that direction at all. कि भाई I am so confident about myself that I am going to crack it. Things can go south any day. But all what I'm trying to say is that do not try to make your plan B your plan A. Got it. I Yeah. think thank you for clarifying, because मैं नहीं चाहता कि लोग फिर comment section में गालियां दें, so that's why I had to uh, elaborate, urge you to elaborate. So Snow, सारी बदतमीजी तुम आज ही कर लो. तो सॉरी गाइस, एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब करो इस वीडियो को. एंड निशान, थैंक यू सो मच भाई फॉर कमिंग एज अ गेस्ट, एंड वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू होस्ट यू अगेन. एंड For sure. ईशान का इंस्टाग्राम हैंडल इज इन डिस्क्रिप्शन. डू चेक इट आउट, फॉलो करो, वॉच सम रील्स, लाइक इट. एंड फॉर गर्ल्स की डोंट डिस्ट्रैक्ट हिम. या यू You can कैन. try if you want. You can't. So thank you so much, Ishan bhai, and all the best to whatever you're doing. You're amazing, and I really like your content. So great going, Thank you so much, Bhaiya. It was a pleasure being here. great. On that note, thank you so much. Take care and Jai Hind. Jai Hind. Bye bye.